Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series by Anisa Zafar for course number 301 Physical Geography. We are referring to the book Geosystems by Robert Christopherson for these lectures, and in this video we will discuss some topics from chapter number 3, which is Earth's modern atmosphere. So let's define the term atmosphere. As we have studied that the earth has 4 distinct layers. दुनिया में 4 layers हैं. Lithosphere जो कि solid है, hydrosphere which is liquid, and atmosphere which is gaseous in state, और चौथी layer का नाम है biosphere which contains life. So atmosphere इन तमाम layers के अंदर वो layer है जिसकी density सबसे कम है. So it is present above all the other 3 layers. Now if we look at the atmosphere, it is further divided into layers, और atmosphere की वो layers divide की गई हैं composition की base पर, temperature की base पर और function की base पर. So all these layers of atmosphere, all the sub layers of atmosphere are gaseous in state, as we have already discussed. Gaseous state में होने की वजह से these layers are present above all the other layers, और ये gaseous layer अर्थ सरफेस से escape क्यों नहीं करती? Because of the gravitational pull, कि gravity ने इस gaseous medium को, इस atmosphere को अपने around stick करके रखा हुआ है. So here is an illustration to show the different layers of atmosphere on 3 different bases, जो कि अभी मैंने बताया, on the basis of composition, on the basis of temperature, and on the basis of functions. So these are the 3 criteria according to which the atmosphere is further categorized. So ये left side पर there are 3 different bars. So the first one is according to composition, this one here, ये composition के according, फिर दूसरे बार में temperature के according layers हैं, और फिर तीसरे बार में function के according layers हैं. So these 3 criteria and their layers can overlap, बल्कि ये overlap करते हैं. हम at a time एक criteria को focus करते हैं अपने usage के according, के whether we have to see the temperature basis or we have to see the composition basis or the function basis, but these layers are overlapping. So let's see, according to composition, there are 2 layers, the heterosphere over here and the homosphere. So this is the surface of earth, bottom वाली line जो है, this is the surface of earth, और यहाँ पर earth का सबसे prominent feature जो है Mount Everest, वो यहाँ पे उसकी illustration बनाई है just to give an idea कि atmosphere की actual height और altitude कहाँ तक जा रही है. So here this is the surface of earth, और यहाँ से surface of earth से हम अगर देखें तो composition के according जो नीचे वाली layer है which is near the surface, it is homosphere, and the layer which is above is heterosphere. These are the 2 layers according to composition. Now according to function we have again 2 layers, the ozonosphere over here and the ionosphere. And again ओजोनोस्फेयर की जो रेंज है, इट्स स्टार्टिंग क्वाइट अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि आप सब ने ओजोन लेयर का नाम सुना हुआ है कि दिस इज़ द लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. सो उस प्रोटेक्शन की ज़रूरत हमें जो लिविंग स्फेयर है, जहाँ पर लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, उनसे काफ़ी ऊपर चाहिए होती है, ताकि फिल्ट्रेशन ऊपर ही हो जाए और नीचे जहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं वहाँ तक फिर वो हार्मफुल रेज ना आए. दैट्स वाई ओजोनोस्फेयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम रफली 15 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. यहाँ पर आप देखिए एट दिस पॉइंट हियर, ये इस ओजोनोस्फेयर का पिंक शेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज रफली 15 to 17 kilometers above the surface of earth. So this is the ozonosphere. ये भी function के according है, ये भी protection देता है the living sphere को. ये इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, living sphere. So this gives protection, and this is ionosphere over here, and it's quite thick. So this
is another layer which protects the earth surface from other harmful waves. ओजोनोस्फेयर टारगेट करता है अल्ट्रावायलेट को और आयोनोस्फेयर आयनिक पार्टिकल्स को आयोनाइजेशन के थ्रू अपने it stops those rays from reaching the living sphere, the earth surface. Now according to temperature we have 4 different layers. So if starting from the surface of earth, अगर हम surface of earth से देखें, so the first layer is troposphere. ये स्फेयर है जिसको हम लिविंग स्फेयर कहते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर के अंदर लाइफ पाई जाती है, लिविंग थिंग्स सारे ट्रोपोस्फेयर में कंफर्टेबली रहते हैं. यहाँ पर इस लेयर के अंदर तमाम जानदार पाए जाते हैं. So that's why troposphere is the living sphere. Then we have stratosphere, the second layer according to temperature. The third one is mesosphere according to temperature, and the fourth one is thermosphere. So ये 4 layers according to temperature. Okay, now here are some interesting patterns. अगर आप देखें तो heterosphere and thermosphere have the same thickness. In fact, जहाँ से heterosphere start हो रहा है वहीं से thermosphere भी start हो रहा है. So we can say that heterosphere and thermosphere have the same extent, or these are the same layer. Different names due to different criteria. Okay, then if we see the ionosphere, so ionosphere contains 2 layers. It contains the mesosphere and the thermosphere. आप यहाँ देखिए ये येलो शेड आयोनोस्फेयर का जो स्टार्ट हो रहा है इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन से, and this is the start of mesosphere over here. So ionosphere contains thermosphere and mesosphere. Then the third thing is ozonosphere. So ozonosphere starts where the stratosphere starts. जहाँ से stratosphere की starting है वहीं से ozonosphere की starting है, और जहाँ पे stratosphere ख़त्म हो रही है वहीं पे ozonosphere भी ख़त्म हो रहा है. So these two are similar, just like homosphere and thermosphere. ठीक है, heterosphere and thermosphere are more or less the same क्योंकि उनका एक्सटेंट सेम है, सेम हाइट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम हाइट पे ख़त्म हो रहे हैं. इसी तरह से ओजोनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर सेम है. देन वी हैव आयोनोस्फेयर which contains 2 layers according to temperature, the meso and the thermosphere. Then homosphere की अगर हम बात करें तो homosphere contains 3 different layers according to temperature, the troposphere, stratosphere and mesosphere. So ये कुछ overlapping condition थी which I have just discussed. We will refer back to this figure later on, but now let's discuss heterosphere and homosphere concept. So atmospheric composition criterion, heterosphere, it is the outer layer. आउटर लेयर मीन्स के अर्थ की सरफेस से अगर आप स्टार्ट करें तो ये बाहर की तरफ होती है हीट्रोस्फेयर, और अंदर की तरफ यानी सरफेस से जुड़ी जो होती है दैट इज़ द होमोस्फेयर. सो हीट्रोस्फेयर इट इज़ आउटर एंड इट्स रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 80 किलोमीटर्स. 80 किलोमीटर की बुलंदी पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आपको हीट्रोस्फेयर मिलेगा, और फिर इट गोज़ अप टिल 480 किलोमीटर्स जो कि एटमॉस्फेयर की रेंज है. एटमॉस्फेयर की टोटल थिकनेस 480 किलोमीटर्स है. सो हीट्रोस्फेयर इज प्रेजेंट फ्रॉम 80 किलोमीटर्स टू 480 किलोमीटर्स. एंड अगर हम एटमॉस्फेयर का टोटल कॉम्पोजिशन देखें तो ओनली less than 0.001% of the total atmospheric mass is found in the heterosphere, यानी इसकी डेंसिटी इतनी कम है. Less than 0.001% of the total atmospheric masses, जितनी भी gases हैं, जितने भी pollutants हैं, उन सब का सिर्फ 0.001% पाया जाता है हीट्रोस्फेयर के अंदर. नाउ इसको हीट्रोस्फेयर क्यों कहा जाता है? हीट्रो मीन्स डिफरेंट. सो what is different in this layer? द कॉम्पोजिशन यहाँ पे डिफरेंट है कि आप हीट्रोस्फेयर के अंदर डिफरेंट जगहों पर जाएंगे आपको डिफरेंट गैसेस मिलेंगी. लाइक द गैसेस आर अरेंज्ड हेयर इन हीट्रोस्फेयर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस.
जो एटॉमिक वेट है उसके अकॉर्डिंग अरेंज हुए हुए हैं हीट्रोस्फीयर के अंदर गैसेस। लाइक हाइड्रोजन और हीलियम का मास सबसे कम है अमंग ऑल दी गैसेस, सो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड एट द टॉप। इसी तरह से हैवी गैसेस जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो हीट्रोस्फीयर के बॉटम की तरफ मिलेंगी ड्यू टू ग्रेविटी एंड देयर एटॉमिक मासेस। So that's why the term hetero applies, that the composition is not same everywhere in the heterosphere, कि कहीं आपको हाइड्रोजन मिल रही है तो कहीं पे आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, कहीं पे ऑक्सीजन है तो कहीं पे नाइट्रोजन नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज़ हीट्रो, इट्स कॉम्पोजिशन इज़ डिफरेंट कंपेरेटिवली। अगर हम बात करें होमोस्फेयर की, सो होमोस्फेयर का कॉम्पोजिशन मोर और लेस सेम है। wherever you go in the homosphere the composition is same, like you must have studied in your grade 8 or maybe in your school that हमारे पास सबसे ज़्यादा जो गैस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो नाइट्रोजन है, and that is 78%. so wherever you go into the atmosphere, in the homosphere, आप कहीं पर भी चले जाएंगे नाइट्रोजन आपको 78% ही मिलेगा। इसी तरह से wherever you go within the homosphere you will find oxygen as 21%, roughly 21%। ये 20.94 है, बट इसको राउंड ऑफ करके 21% कहा जाता है over here। So this is the reason homosphere is called as homosphere, कि it has the same composition, more or less the same composition everywhere, wherever you go you will find the same proportion। और होमोस्फेयर का एक्सटेंट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू 80 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड। ओके, नाउ विद इन द होमोस्फेयर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है ओजोन लेयर की, जहाँ पर आपको सिर्फ एक इट्स जस्ट लाइक अ बेल्ट ऑफ O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स का एक कंपोजिशन है, एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो कि आपको होमोस्फेयर में मिलेगा, जिसमें आपको उस लेयर के अंदर, उस पतली लेयर के अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शन इन द होमोस्फेयर। अदर देन दैट एवरीवेयर इन द होमोस्फेयर द composition of the gases and their proportion and percentages remain the same। तो कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? सबसे ज़्यादा इट्स नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 21%, ये दोनों मिला के हो जाते हैं 99%। और इसके अलावा बाकी तमाम गैसेस 1% कंप्राइज करती हैं, उसमें भी 1% का जो सबसे बड़ा हिस्सा है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय आर्गन और आर्गॉन, एंड इट इज़ 0.9%। दैन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत इट्स अ कल्प्रिट काइंड ऑफ अ गैस, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कि इसकी वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रही है। सो दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सिर्फ और सिर्फ 0.03% है, और इसी परसेंटेज के बावजूद भी इट इज़ डिस्टर्बिंग द ओवरऑल अर्थ सिस्टम। Okay, after carbon dioxide we have neon, helium, methane and the other gases। So आपको जो फोकस करना है वो these excuse me, these gases: nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium। Now let's discuss the atmospheric function criterion or the layers according to function। So we have 2 layers according to function: the ionosphere and the ozonosphere। So first discuss the ionosphere। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आयोनोस्फेयर के अंदर 2 लेयर्स मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और वो 2 लेयर्स कौन कौन सी हैं? थर्मोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। ओवर हियर थर्मोस्फेयर and mesosphere। Okay, why ionosphere is called as ionosphere? Because it forms ions। इसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से? कि इट स्टॉप्स और इट एब्जॉर्ब्स डिफरेंट वेव्स, हार्मफुल वेव्स कमिंग फ्रॉम द सन। और वो कौन कौन सी वेव्स हैं? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज एंड अदर शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट ऑलरेडी शॉर्ट है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट की रेंज में कुछ जो मज़ीद जो ऑन द इवन शॉर्टर साइड, और वी कैन से कि बहुत से अल्ट्रावायलेट रेज को आयोनोस्फेयर स्टॉप कर देता है, जबकि कुछ पास ऑन होके ओजोनोस्फेयर में एंटर हो जाती हैं। सो आयोनोस्फेयर
absorbs these different rays, the cosmic rays, gamma rays, X-rays and short ultraviolet radiations. And what does it do? That it changes these atoms to positively charged ions. तो इन पॉजिटिवली चार्ज आइंस के बनने की वजह से इस लेयर को आयोनोस्फीयर कहा जाता है, और इन्हीं चार्ज आइंस की फॉर्मेशन की वजह से हमें ऑरोराज की लाइट नज़र आती है, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था. ऑरोराज, द नॉर्दर्न लाइट्स एंड द सदर्न लाइट्स. सो नाउ यू नो दैट दीज ऑरोराज आर फॉर्म्ड इन द आयोनोस्फीयर. So this diagram on the right, it shows how this atmosphere is functioning to stop different types of harmful rays. So बहुत short waves को या gamma rays को कहाँ पे किस रेंज में स्टॉप किया गया है? ये पर्पल लेयर जो है, this is the thermosphere. So this is the thermosphere and this is the mesosphere, this is stratosphere and this is troposphere. So here we see that अगर इस येलो लेयर को यानी मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को मिलाएं तो हमारे पास आयोनोस्फेयर बनता है. आयोनोस्फेयर के अंदर यू सी दैट गामा रेज भी स्टॉप हो रही हैं, एक्स रेज भी थोड़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर रही हैं, लेकिन फाइनली आयंस में कन्वर्ट हो गई. और फिर इसके बाद ये अल्ट्रावायलेट वेव्स शॉर्ट वाली, ये पर्पल वेव्स जो हैं ये शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट हैं, इनको भी यहाँ पर स्टॉप कर दिया विद इन द आयोनोस्फेयर. Now again I'm telling from 50 kilometers to 480 kilometers, this is ionosphere. Okay, then कौन सी light further penetrate कर रही है? So this light green shade from 18 to 50, this is stratosphere और इसको ozonosphere भी कहा जाता है. Ozonosphere is the second layer according to function. So ozonosphere के अंदर ultraviolet की longer wavelength से stop हो रही हैं, और ये जो पैच जा रहा है, दिस कलरफुल वन, दिस इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसमें रेनबो के 7 कलर्स या विब गायर होता है. सो दिस एक्चुअली पेनिट्रेट्स ऑल द लेयर्स एंड रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये इंसानों के लिए ज़रूरी है, जानदारों के लिए. इट्स वाइटल फॉर ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. एंड देन दी सम ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ्स आर एक्चुअली पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. बट हार्मफुल कौन सी हैं जो कि लेफ़्ट साइड पर हैं? ये शॉर्ट वेव, गामा, एक्स रेज, कॉस्मिक, दीज आर हार्मफुल. सो दीज आर स्टॉप्ड बाय द 2 लेयर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन. हमने अभी बात की आयोनोस्फेयर की और ओजोनोस्फेयर. व्हाट डज इट डू? दैट इट हैज़ अ स्पेशल composition of oxygen which is O3, and what does it do? That it absorbs the ultraviolet rays और अल्ट्रावायलेट वेव्स. तो ओजोन का मेन फंक्शन अल्ट्रावायलेट वेव्स को स्टॉप करना है, ओजोनोस्फेयर का. सो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट वेव्स, व्हाट ओजोनोस्फेयर डज इज दैट इट कन्वर्ट्स all those short wave or all those ultraviolet waves into infrared radiation, जो कि उतनी हार्मफुल नहीं होती जितनी कि अल्ट्रावायलेट वेव्स हार्मफुल होती हैं. सो इट इज़ एब्जॉर्बिंग the ultraviolet waves and then converting that ultraviolet waves into infrared radiation. Difference क्या है ultraviolet और infrared में? wavelength का. Infrared has bigger wavelength compared to the ultraviolet ones, and that smaller wavelength make the ultraviolet radiations harmful. Now the layers of atmosphere according to temperature, that is atmospheric temperature criterion. So if we start from the top, तो top से पहली लेयर जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ द थर्मोस्फेयर. नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू दैट ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्यों डिफ्रेंशिएट की गई हैं, कि क्या ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से टेम्परेचर की लेयर्स बनानी पड़ी. सो इट्स द टेम्परेचर पैटर्न अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, कि हर लेयर के अंदर यानी 4 लेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. इन एवरी लेयर द टेम्परेचर पैटर्न इज़ डिफरेंट कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग लेयर्स. लाइक थर्मोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर, आप जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, थर्मोस्फेयर पे आप ऊपर की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे,
temperature will increase. So let's have a look at this diagram again. So if you see this yellow line, तो ये येलो लाइन टेम्परेचर के पैटर्न को डिफाइन कर रही है, जिसकी वजह से हमें 4 लेयर्स बनानी पड़ी. सो द टॉप वन इज़ थर्मोस्फेयर, जिसमें आप देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है. और कहाँ तक इंक्रीज़ करता है? दिस इज़ द पॉइंट वेयर इट रीचेज, एंड यहाँ तकरीबन दिस इज़ 1200 डिग्रीज सेल्सियस. So this is the temperature here in the thermosphere. Now compared to that, अगर हम mesosphere को देखें तो mesosphere में यहाँ हम लोग इसके start से बात कर लेते हैं. This is the starting of mesosphere, this line. So if we start from here and if we go in the higher altitude, we see that the temperature is decreasing. And how do we know? There ये x-axis यहाँ पर temperature की readings हैं बॉटम पर, और आप लेफ़्ट पर अगर कर्व जा रहा है इट मीन्स के रीडिंग्स कम हो रही हैं, और अगर कर्व राइट साइड पर जा रहा है इट मीन्स के रीडिंग्स बढ़ रही हैं. सो विद इन द मीजोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड यानी हाइट. सिमिलरली बात करते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर की. सो स्ट्रेटोस्फेयर, इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग विद द एल्टीट्यूड. जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. नाउ द लिविंग स्फेयर और द ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या पैटर्न है कि आप जब सरफेस पर हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है. सो दिस इज़ द पैटर्न, और इसी वजह से हमारे पास 4 लेयर्स बनी ट्रोपोस्फेयर. It's up to you. You can start from the top, but I am habitual of naming these layers from the bottom. So bottom से हम अगर start करें तो troposphere, then stratosphere, then mesosphere, and then thermosphere. So troposphere, इसका temperature pattern क्या है? Temperature decreases with the altitude. So अगर इसका proportionality बनाएंगे तो we can say temperature is inversely proportional to altitude in the troposphere. अब अगर stratosphere की बात करें तो temperature is directly proportional to the altitude. जैसे जैसे आप हाइट ऊंचाई पर जा रहे हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इन द स्ट्रेटोस्फेयर. नाउ विद इन द मीजोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर जैसा ही है इसमें कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड. आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे टेम्परेचर वैसा वैसा कम होता रहेगा. एंड इन द थर्मोस्फेयर द हायर यू गो द हायर विल बी द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्टीट्यूड के. सो ये रीज़न है कि वी हैव दीज 4 लेयर्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और सबसे कॉमनली यही 4 लेयर्स यूज़ होती हैं. बहुत कम जिक्र आता है हीट्रोस्फेयर, होमोस्फेयर का, या आयोनोस्फेयर, या ओजोनोस्फेयर इज़ अ लिटिल बिट मोर पॉपुलर कंपेयर टू द अदर 3. ओके, नाउ ईच लेयर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हैज़ सर्टेन बाउंड्रीज, और वो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं. Here the topmost layer or the outer boundary of the troposphere is called as tropopause. Here it is, tropopause. Okay, the outer boundary of troposphere. इसी तरह से stratosphere की outer boundary को कहते हैं stratopause. Over here, stratopause, and again in the outermost boundary of the mesosphere is called as mesopause. The name is here, mesopause. And the outermost boundary of the thermosphere is called as thermopause. और thermopause वो लाइन है जहाँ पर हमारी एटमॉस्फेयर की लिमिट आ जाती है, और उसके बाद एटमॉस्फेयर ख़त्म और स्पेस आ जाती है, जो हम एक पढ़ते हैं कि स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट ये वो. सो दैट स्पेस स्टार्ट्स आफ्टर द थर्मोपॉज, और स्पेस के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है दैट इज़ एक्सोस्फेयर. वही हियर. सो एक्सोस्फेयर इज़ द स्पेस वेयर द एटमॉस्फेयर एंड्स. Now some more details about these layers according to temperature. Thermosphere
इसको हीट स्फीयर भी कहते हैं, और इसकी लिमिट क्या है, फ्रॉम 80 किलोमीटर्स टू 480 किलोमीटर्स। और थर्मोपॉज इज़ द आउटर बाउंड्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अपर लिमिट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज थर्मोपॉज। और पॉज मीन्स टू चेंज, यानी जहाँ पे वो लेयर ख़त्म हो जाती है वो चेंज हो जाती है। नाउ देयर इज समथिंग एल्स, सो एंड what is that something else? That is the exosphere या space. Then the temperature profile, यानी टेम्परेचर का क्या पैटर्न है, so it shows that temperature rise sharply in the thermosphere. और कहाँ तक टेम्परेचर जाता है, 1200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा। So but the temperature is extremely high there in the thermosphere, but still when things go in that layer the things do not burn. उसकी वजह क्या है, वहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है। अगर आपको डेंसिटी याद हो थर्मोस्फेयर की, तो वो वहाँ पर 0.001% एटमॉस्फेयर का मास था, तो पार्टिकल्स बहुत कम हैं जिसकी वजह से हीट फ्लो नहीं होता है, और इसकी वजह से थर्मोस्फेयर डज नॉट बर्न थिंग्स विच एवर गो देयर। Although if we see 1200 डिग्री सेल्सियस तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। Now mesosphere. So the range of mesosphere is from 50 to 80 kilometers from the surface of Earth, and its outer boundary is called as mesopause. And mesopause is the coldest portion of atmosphere, and its temperature is minus 90 degrees Celsius. एटमॉस्फेयर का और कोई हिस्सा इससे ज़्यादा ठंडा नहीं है। सो दिस इज़ द कोल्डेस्ट पोर्शन एंड इट्स नेम इज़ mesopause. Okay, there is a special feature in mesopause in the mesosphere, and that special feature is the formation of noctilucent cloud. Noctilucent cloud, ये वो क्लाउड्स हैं जो नॉक्ट यानी रात के टाइम चमकने वाले क्लाउड्स, और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और उन आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि इनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो दैट आइस क्रिस्टल रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट इवन एट नाइट. दैट्स वाई समटाइम्स पीपल कैन सी दीज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, जो रात को चमकने वाले या रात के टाइम पर जो रोशन बादल होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड. द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज है फ्रॉम 18 kilometers to 50 kilometers from the earth's surface, और इसमें टेम्परेचर increases with the altitude, and the upper boundary, outer boundary of stratosphere is called as stratopause. It has ozone layer as well, so stratopause is also called as ozonosphere. Then comes the troposphere. This is the final layer which encounters the insolation. यह आखिरी लेयर है जो जिसको इंसोलेशन मिलती है, और ये वो लेयर है जो लाइफ को सपोर्ट करती है. So it is the home of biosphere, and it supports life, and the major weather activity takes place in the troposphere. जितने भी मौसम में चेंजेस हैं, तूफ़ान है या साइक्लोन्स हैं, हीट वेव है, वो all these phenomenon take place within the troposphere. The outer layer is called as tropopause, and tropopause की यहाँ पर एक यूनिक बात है, और वो ये है कि tropopause does not have the same altitude everywhere. अगर हम पोल्स की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पर ट्रोपोपॉज कम हाइट पर है, यानी तकरीबन 12 किलोमीटर्स पे. और अगर हम इक्वेटर का ट्रोपोपॉज देखें तो इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज इट्स हायर. उसकी वजह क्या है कि पोल्स में टेम्परेचर कम होता है, एंड व्हेन द टेम्परेचर्स आर लो द एयर सिंक्स, हवा बैठती है सर्दी में, और गर्मी में हवा ऊपर को राइज करती है. सो इस टेम्परेचर की वजह से, पोल के ठंडा होने की वजह से, ट्रोपोपॉज पोल्स पर लो एल्टीट्यूड पर है, यानी लो हाइट पर है, और इक्वेटर पे क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर ट्रोपोपॉज
ऊंचाई पर मिलेगा, क्योंकि हवा एक्सपैंड करती है इन द हायर टेम्परेचर्स. So the tropopause does not have same altitude throughout the earth. And here you see we have equatorial tropopause and there we have the polar tropopause, और इनकी altitude में difference है. Okay, and within the troposphere the temperature decreases with the increasing altitude. So that's all for this video lecture. I think ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, but we have to complete the topic. इस चैप्टर के अंदर मेन एटमॉस्फेरिक लेयर्स का ही टॉपिक है. इसके अलावा पोल्यूशन का टॉपिक है, द डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, thank you very much.